Hi student, this is Hemant sir. In the last video session, we have completed Wurtz reaction, reaction of halorines, reaction of halorine with metals like in Wurtz feeding reaction and feeding reaction. In this session, we will discuss first topic, that is nucleophilic substitution, in short SN, of halorines. Second topic will be electrophilic substitution in aryl halide. Subtopic is halogenation in terms of electrophilic substitution in aryl halide. Second one is a nitration. Third one is a sulfonation. And last one is a Friedel-Crafts reaction. If you see carefully, you will be remember. Yeah, you can remind. This all topic we have seen in 11th class in shortly. In today's session, we will discuss in briefly. Let's see the first, that is nucleophilic substitution, in short SN, of halorines. Halorines. Here, this is the structure of halorines. Halo means halogen like chlorine, and arene means this aromatic thing. Hence, the common name is haloarenes. Here, this carbon and the chlorine distance is 1.70 angstrom. A chloride attached the carbon of the aromatic ring is called sp2 hybridized carbon atom. That you have to remember. This is basic things. This is sp2 hybridized carbon atom. Okay. This is halogen, and the length between the halogen and carbon is 1.70 angstrom. This is chlorobenzene. Okay, yeah, haloarenes. Let's see the similar example in terms of haloalkanes. This is the methyl group having 3 hydrogens with the carbon, and at the terminal position having chloride. The distance between the carbon and chloride is 1.77 angstrom, which is slightly more than the chlorobenzene. Okay, and the carbon atom of the methyl chloride is the hybridization of the carbon atom of methyl chloride is sp3 hybridization. What is difference between them is, one is a bond length and second one is a hybridization of carbon atom. Here, the bond length of the chlorobenzene is 1.70 angstrom. Hence, there is a strong bond between the carbon and chloride in haloarenes. And in chloromethane, the bond length is 1.77 angstrom, which is slightly more. Hence, the bond length is weaker than the chlorobenzene. Okay. Here,
In the 11th class, we have learned resonance topic. Yeah, resonance effect, correct? Resonance effect or mesomeric effect. We have seen the definitions. We have seen the plus R effect, minus R effect in the previous class, means in 11th class. Resonance effect means the polarity produced in the molecule by the interaction between conjugated pi bond or between pi bond and p orbital on attached atom is called the resonance effect. Now see, this chlorobenzene generated polarity between the carbon and chloride by the interaction of conjugated pi bond. This pi bond, double bond shows the pi bond. Let's see the textual example. But before textual example, we have to know the some basic concept. Due to the resonance effect and sp2 hybridized carbon atom, aryl halide shows low reactivity towards nucleophilic substitution reaction. Only because of the only two reasons, that is resonance effect and sp2 hybridized state. In the chlorobenzene, the carbon atom shows the sp2 hybridized carbon atom, and resonance effect means actually in the chlorobenzene there are two effects. One is a resonance effect due to the aromatic benzene, right? And second is the inductive effect. There are two effects in this structure. One is a inductive effect. This is the carbon and chloride having the inductive effect that we have learned in the previous class, previous year, and this part shows resonance effect. If the electron pushed away from the halogen or any atom, any attached atom, that time it shows the plus R effect. Clear? Positive resonance effect means electron donating or releasing resonance effect. Let's see the textual structure. This is chlorobenzene structure, correct? This chloride is a highly electronegative atom, and this chloride link with the aromatic carbon is called as sp2 hybridized carbon. Every halogen or p block elements having extra lone pair of electron here. Okay, so that this chloride pushes the electron between the carbon and chloride and produce the double bond character between the carbon and chloride. Once the double bond character produced between the carbon and chloride, this double bond, this part, this double bond, double a pi electron shifted towards the neighbor carbon atom. Okay. Due to the pi electron shifted to the neighbor carbon, hence the neighbor carbon bearing the negative charge. Look the second structure. This. Okay. And carbon and chloride form the double bond between them.
and chloride having positive charge because chloride ने इलेक्ट्रॉन दिए तो क्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन कम हो चुके. Hence chloride acquire positive charge and carbon and chloride having double bond. A pi electron shifted to the neighbor carbon, hence the neighbor carbon having negative charge on it. Okay, this is the second structure. Then the negative pi electrons transferred between this carbon and pi electron shifted towards this carbon. Hence, a double bond formed between this carbon and negative charge generated on this terminal position of the carbon and form third structure. Clear? Again, this negative pi electron transfer between this carbon and form the carbon-carbon double bond, and neighbor pi electron transfer towards the next carbon atom. You will get the 4 number structure like this. Correct? Here, this pi electron shifted towards this carbon, hence this carbon acquire negative charge. And this pi electron shifted between this carbon, hence carbon-carbon double bond formed between this carbon-carbon. Here again, pi electron shifted between this carbon, then double bond character disappear after fourth structure. Okay, this resonance structure second, third, and fourth shows the double bond character to carbon chloride bond. Clear? इधर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इधर डबल बॉन्ड दिख रहा है और इधर डबल बॉन्ड. This is double bond character in CX bond. And the carbon chlorine bond in chlorobenzene is stronger and shorter than the chloroalkane या chloromethanes. इससे वो shorter है ना, because of the double bond character. And we know the length in chlorobenzene, the bond length is 1.70 angstrom, and this is strong bond between the aromatic carbon chloride. In terms of the chloromethane, this having the weak bond. So that the breaking or cleavage of the carbon and chloride does not easily possible. Clear? Breaking of carbon and chloride bond does not possible because strong bond and double bond character. Hence, a nucleophilic reaction does not easily possible with a chlorobenzene. अगर आप सोचोगे जैसे हम लोगों ने SN1 एंड SN2 रिएक्शन में देखा था, SN1 में हमने देखा था कि हैलोजन पहले ब्रेक होता है और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है कार्बन के ऊपर. तो इस स्ट्रक्चर में, इस हेलो अरिन में कार्बन इजीली ऐसा ब्रेक भी नहीं हो सकता बिकॉज कार्बन और क्लोराइड
का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इजीली वो खुद ब्रेक भी नहीं हो सकता है। सेकंड, न्यूक्लियोफाइल ना इधर से अटैक कर सकता है ना बैक साइड से अटैक कर सकता है, दोनों तरफ रेजोनेंस इफेक्ट है। Back side attack of nucleophile is blocked and front side also blocked by the aromatic ring. Hence, SN2 rule out means SN2 reaction का rule इधर अप्लाई नहीं हो सकता. SN1 also does not possible because of the strong bond between the carbon and chloride. Hence, there is a very difficulties for the cleavage of CX bond. However, the presence of certain group at certain position of the ring markedly activate the halogen of aryl halide towards the substitution. Means a nucleophilic substitution reaction is not actually easily possible because of CX bond as well as the resonance effect and sp2 hybridized carbonate. Okay, but the presence of certain groups at a certain position of the aryl halide towards substitution, I mean to say, अगर इस हैलो अरिन में अगर कौन सी पोजीशन पे अगर कुछ एटम और कुछ ग्रुप अगर होगा तो वो एक्टिवेट करेगा हैलोजन को ऑफ अरिल हाइलाइट टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन. फॉर एग्जांपल, सपोज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर कौन सा ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आ जाता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा. मीन्स greater the number of electron withdrawing group at the ortho and para position, greater is the reactivity. Okay, let's see the ortho and para position of these halogens. ये जो पोजीशन है ये और ये, इसको आप लोग बोलते हैं ऑर्थो. इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो. इसको नीचे वाली जो पोजीशन उसको हम लोग बोलते हैं पैरा. इसको बोलते हैं मेटा. ओके, ये वो आपका नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, 4, 5, 6. नंबर 1, 2 एंड 1, 6, 1, 2, 1, 6, ये क्या दिखाते हैं? ऑर्थो पोजीशन. नंबर 1, 3 एंड 1, 5, 1, 3 एंड 1, 5, ये क्या दिखाते हैं? मेटा. एंड 1, 4 होगा तो वो क्या दिखाएगा? पोजीशन प्यारा. पोजीशन नंबर 1, 2 and 1, 6 shows the ortho. Position number 1, 3 and 1, 5 shows meta. Position number 1, 4 shows the para. Means greater the
number of electron withdrawing groups at ortho and para position, greater is the reactivity. Electron withdrawing group at meta position has particularly no effect on reactivity. अगर मेटा पोजीशन पे अगर कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जाता है तो रिएक्टिविटी नहीं दिखाता है. ऐसा क्यों होता है? क्यों ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो जो पूरा जो हेलो आयरन्स वो रिएक्टिव हो जाता है टुवर्ड्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अगर ध्यान से देखोगे नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 पे तो ये नेगेटिव चार्ज देखो किधर किधर जनरेट हुआ है. ये हुआ है ऑर्थो पे एंड पैरा पे. नेगेटिव चार्ज जनरेट होना एक पर्टिकुलर कार्बन पे उसका मतलब उसके उस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जनरेट हुई है. उधर उस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए. अगर जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है. क्या आपने देखा कि मेटा पोजीशन पे 1,3 पोजीशन 1,5 पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ ऐसा दिख रहा है आपको किधर? नहीं. Electronic density generated on ortho as well as on para position. Hence, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेलो ऑरेंज को रिएक्टिव बनाते हैं, रिएक्टिव करते हैं. ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट. यानी आप लोगों को अब कौन सा भी हेलो ऑरेंज के साथ रिएक्शन देखनी है तो आप लोग अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालेंगे तो आपको तुरंत आना चाहिए कि वो शायद ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा because electronic density generated on ortho and para position. लेते टेक्सचुअल एग्जांपल. आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल दैट इज पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. पैरा पोजीशन पे क्या दिया है? नाइट्रो. दिस इज पैरा पोजीशन ऑफ द हेलोरेंस. हेंस इट इज पैरा नाइट्रो. ये पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का. हेंस पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन. बराबर है. अभी ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया है. बराबर है. ध्यान से देखो NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. वो इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींचता है. अगर ऐसे वक्त में अगर आप लोगों को न्यूक्लियोफाइल डाल दिया NaOH at high temperature like 433 Kelvin in H3O plus तो वो इजीली हैलोजन को रिप्लेस करेगा. रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल. ये जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस आयन वो इजीली इसको रिप्लेस करेगा. ऐसा आपको प्रोडक्ट में मिलेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल. जिधर हैलोजन है उसको रिप्लेस करेगा न्यूक्लियोफाइल. इतना ध्यान में रखो बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. अगर इसके यानी पैरा पोजीशन पे NO2 नहीं होता ना तो ये रिएक्शन बहुत इजीली पॉसिबल नहीं बिकॉज ऑफ NO2. और NO2 क्या करता है? रिंग को एक्टिव करता है, रिएक्टिव कर देता है. इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली क्लोराइड को रिप्लेस करता है तो इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है. सेकंड देखो, सेकंड रिएक्शन में भी देखो ये जो दिया है ये भी कौन से पोजीशन पे दिया है? ऑर्थो और ये पैरा. 2,4 डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो पैरा डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं आप इसको. एक्वेस सोडियम कार्बोनेट दिया है at 403 केल्विन with H3O plus. ओके. एक्वेस सोडियम कार्बोनेट दिया है इसीलिए OH मिलता है और OH क्लोराइड को रिप्लेस करता है. इसको रिप्लेस करेगा तो आपको 2,4 डायनाइट्रोफिनॉल मिलेगा. इसको टच नहीं करेगा और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को टच नहीं करेगा. वो डायरेक्टली हैलोजन के ऊपर अटैक करेगा और उसको रिप्लेस करेगा. ओके. सभी एग्जांपल सेम ही है. बस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशन
चेंज कर दी किधर। अब ये देखो इधर पैरा पे एक है और ऑर्थो पे दो दिए, सेम है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए उतनी वो स्ट्रक्चर या कंपाउंड हो हेलोरेंस को ज्यादा रिएक्टिव कर सकता है। अभी इधर देखो 246 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देयर आर 3 नाइट्रो ग्रुप्स एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े, बस आप वार्म करना पड़ेगा उसको, तो तुरंत आपको फिनॉल मिलेगा। बराबर है? आपको इधर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, क्योंकि डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देयर आर सॉरी ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो सिंपल सा टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें। वो टेम्परेचर देने के बाद आपको अल्कोहलिक प्रोडक्ट सॉरी फिनोलिक प्रोडक्ट 2,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलेगा। इससे आपको पता चलेगा, देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा एक ही, तो आपको 433 केल्विन टेम्परेचर यूज हुआ। अगर दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए ऐसा 1 एंड 2, तो टेम्परेचर कम होता जाता है। और अगर तीन होगा तो टेम्परेचर नहीं, बस वार्म करना है, हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? greater number of electron withdrawing group at ortho and para position, greater is the reactivity। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन ऑफ हेलोरिन। जो न्यूक्लियोफाइल हमने इधर NaOH लिया था, दूसरे रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट लिया था जो वीक है एज कम्पेयर टू द NaOH, और थर्ड में तो हमने वाटर ही डाला था, उसको वार्म किया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की मात्रा बढ़ती जाएगी उतना वो रिएक्टिव होता जाएगा, उसके हिसाब से ही हमें उसमें रिएजेंट डालने की और टेम्परेचर देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 of halogens। Let's see the next topic, that is electrophilic substitution in aryl halide। Aryl halide undergoes actually electrophilic substitution reaction slowly as compared to the benzene. Okay, here in resonance structure of chlorobenzene, electron density is relatively more at ortho and para position that we have seen in the previous resonating structure of the chlorobenzene. Hence, the incoming electrophilic group is more likely to attack at this position. But due to the steric hindrance at ortho position and para, product usually predominates. In halogens, halogen atom has a strong electron withdrawing minus I effect, inductive effect. This deactivates the ring and electrophilic substitution reaction occurs slowly. मैंने पहले ही बोला था कि पिछले वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको बोला था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जनरेट होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, पर वो स्लोली होता है बिकॉज जो क्लोराइड ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन को, वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है और वो स्ट्रांग रहता है एज कम्पेयर टू द रेजोनेंस इफेक्ट, इसीलिए वो रिएक्शन स्लोली स्लोली होती है। द माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन is more powerful actually, more stronger than the resonance effect. Hence, the Cl is ortho and para directing but ring deactivate the ring। तो पहला रिएक्शन देख लेते हैं, हेलोजनेशन। हेलोजनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ये आपकी टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है। अभी ये टेक्स्ट बुक के रिएक्शन के हिसाब से जैसे क्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोराइड लिया है, क्लोराइड जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल रहता है। ओके, reaction is carried out in presence of anhydrous FeCl3 ferric chloride।
इन क्लोरीन। इसको आप लोग फेरिक क्लोराइड बोल सकते हैं। तो फेरिक क्लोराइड फॉर्म्स 4 हाइड्रेट FeCl4 लेविस एसिड। कैसे फॉर्म हो रहा है देखते हैं। ये देखो ऊपर हाउ इट वर्क्स एक्चुअली मैकेनिज्म। ये 2 क्लोरीन लिए और मैंने FeCl3 की पहले रिएक्शन हो जाती है। पहले इन दोनों में पहली रिएक्शन होती है, बराबर है। ये क्लोरीन लिया है और FeCl3। ये क्लोराइड जैसे ही इसको Fe को इलेक्ट्रॉन दे, देखो ये मेटल है, मेटल ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो जो क्लोराइड जैसे ही मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ये जो क्लोराइड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उस ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसको इलेक्ट्रॉन मिले उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, बराबर। फिर उसमें से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और ये पॉजिटिव क्लोराइड फॉर्म होगा। तो ये जो पॉजिटिव क्लोराइड फॉर्म होगा ये इतना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे आप लोग इसको? इलेक्ट्रोफाइल। हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अरिल हैलाइड। तो इधर हम लोग Cl+ लिया है, ऐसा समझो। और जैसे ही ये आपको मालूम है हेलो अरिल्स का रेजोनेंस देखा है, नेगेटिव चार्ज कौन से पोजीशन पे जनरेट होता है? एक ये पोजीशन पे, ये भी ऑर्थो ही और ये भी ऑर्थो ही, और ये पोजीशन पे। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो एक तो ये साइड पे आ जाएगा, नहीं तो ये साइड पे आ जाएगा। ओके, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट एट ऑर्थो is 1,2-dichlorobenzene because electronic density generated at ortho position, and the second product will be 1,4-dichlorobenzene because electronic density also generated on para position. Para is a major and ortho is a minor. Why ortho is minor? Because here more crowding at ortho position, hence it is minor. And here para is why major? Because symmetry, it shows the symmetry, it does not show the symmetry, and more crowding, hence it is a minor. And 1,4-dichlorobenzene, yeah, para-dichlorobenzene is a major product. Clear? This is the halogenation of haloarenes. It is carried out by reacting haloarenes with halogen in presence of ferric salt as a Lewis acid catalyst. ये जो FeCl3 है वो लेविस एसिड है, ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। ये था हेलोजनेशन। तो इलेक्ट्रोफाइल आप लोग कौन से ले सकते हैं? आप लोग हेलोजनेशन ले सकते हैं, नाइट्रेशन भी ले सकते हैं, सल्फोनेशन ले सकते हैं, फ्राइडल ट्रैप रिएक्शन में आप लोग असाइलेशन देख सकते हैं, बराबर है, या अल्काइलेशन देख सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। देखते हैं नाइट्रेशन का रिएक्शन। नाइट्रेशन मीन्स HNO3 के साथ रिएक्शन। इट इज कैरिड आउट बाय heating haloarenes with concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4. क्लोरोबेंजीन दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दिया है, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला है, टेम्परेचर दिया है, प्रोडक्ट में आपको 1-chloro-4-dinitrobenzen एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलता है और सेकंड एज अ 1-chloro-2-dinitrobenzen एज अ माइनर प्रोडक्ट मिलता है। पर पहले क्या होता है कि जो HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन कैसे होती है? ये नाइट्रिक एसिड, एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर लेविस स्ट्रक्चर, ओके, नाइट्रिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर H2SO4 का, इसको हम लोग ऐसे बॉन्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ओके। जो OH दैट हैव एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन को दे देगा और ऑक्सीजन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज, तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा।
ओके, ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। कौन सा? जैसे इसके ऊपर दिया नेगेटिव चार्ज तो ये मिलेगा। इससे हमारा कुछ भी काम नहीं है, हमें काम करना है नाइट्रेशन के साथ। तो बाद में नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इस वाटर को हमें निकाल देना पड़ेगा। तो OH सॉरी ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को, नाइट्रो फिर वही OH को निकाल देगा, तो आपको मिलेगा नाइट्रोनियम आयन। देखो ये वाला, इससे हमें काम है NO2+। तो ये नाइट्रोनियम आयन NO2+ चार्ज, देखो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अभी हमें तो पता है इस पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जनरेट होती है और इधर मीन्स नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है, कौन सा भी एक, ये भी दे सकता है। ये दोनों ऑर्थो ऑर्थो है, इसलिए कौन सा भी एक यूज करो तो आपको उसके हिसाब से उसका प्रोडक्ट मिलेगा। 1 क्लोरो 4 डाई नाइ सॉरी 4 नाइट्रोबेंजीन एंड 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन बराबर है। ये बहुत आसपास है तो इसमें स्टेरिक हिंडरेंस होने के ज़्यादा चांसेस है, क्राउडिंग है, इसलिए माइनर है। इसमें सिमेट्री होती है, इसलिए ये मेजर हो गए। तो हमें ऐसे नाइट्रेशन ऐसे होता है कि हमें पहले नाइट्रोनियम आयन फॉर्म करना पड़ता है। वंस द नाइट्रोनियम आयन फॉर्म, तो उसके बाद क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन बहुत इजीली फॉरवर्ड होती है टुवर्ड द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज अ सल्फोनेशन। Sulfonation means H2SO. It is carried out by heating halogens with the fuming H2SO। जो आप लोगों ने ये सब रिएक्शन एक्चुअली 11 में है। अभी इसमें भी ऐसा ही है कि H2SO4 में इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट करेंगे हम लोग। कैसे जनरेट करेंगे? दो H2SO4 लेना है। दो H2SO जैसे नाइट्रोनियम आयन का OH ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, उसमें भी वैसे ही करना है। समझ में आ रहा? ये वाला दोनों H2SO4 है। ओके, ये सल्फ्यूरिक एसिड ने इसके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा इसका। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन भी आ गया। तो ये वाटर इसमें से निकाल देने का SO3, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं सल्फोनियम आयन। फिर ये सल्फोनियम आयन हमारे काम आने वाला है। SO3 है, दैट इज सल्फोनियम आयन। तो पॉजिटिव चार्ज है, तो कंसेप्ट के हिसाब से वो ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट मिलेगा और दूसरा 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन अगर एलोअरिन के साथ होगी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। आया समझ में? H2SO फ्यूमिंग H2SO4 को आप लोग ओलियम बोल सकते हैं। Oleum means it is a composition of sulfur trioxide in sulfuric acid। जो आएगा आपको फिर से, ओलियम किसको बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, वो आएगा आगे आगे। तो ये था सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दैट वी हैव लर्नड इन 11 क्लास आल्सो। It is carried out by treating haloarine with alkyl chloride or acyl chloride in presence of anhydrous aluminum trichloride। ये आपने 11 में पढ़ाई है, बराबर है। ये क्लोरोबेंजीन जैसे कि वैसे जो हमें लेना ही लेना है। मिथाइल क्लोराइड है, ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसका भी स्ट्रक्चर देख लो कि कैसे होता है। CH3Cl लिया है और अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो अगर इस क्लोराइड ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए तो मिथाइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये निकल जाएगा LCl4। इससे हमें कुछ काम नहीं है। ओके, इससे हमें काम है मिथाइल आयन।
फिर वो मिथाइल आयन आपको मालूम है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चला जाएगा, बराबर। तो 1 क्लोरोटोलिन ये प्रोडक्ट है, दूसरा आएगा 4 क्लोरोटोलिन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही जाएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज उधर ही जनरेट होता है, इसीलिए वो ऑर्थो पे जाएगा और दूसरा पैरा पे जाएगा। उसमें से भी आपको मालूम है अभी कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ज्यादा बोलने की उसमें जरूरत नहीं है, आया समझ में। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, असाइलेशन। ये तो अल्काइलेशन का रिएक्शन था। असाइलेशन, इसमें भी वैसे ही है, ये जो क्लोराइड है वो निकल जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये इधर अटैक करेगा। ये पैरा पोजीशन भी इधर अटैक करेगा, बराबर। तो अगर ऑर्थो पोजीशन से अटैक करेगा तो 1 क्लोरो एसिटोपिनॉन प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर पैरा पोजीशन से अटैक होगा तो 4 क्लोरो एसिटोपिनॉन ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। दोनों ही बहुत इजी रिएक्शन है। दोनों में जितने भी हम लोगों ने रिएक्शन देखा, सभी रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट आपको मिला हो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग था, सभी रिएक्शन थे और स्लो रिएक्शन है। तो रिएक्शन फास्ट करने के लिए इधर हम लोगों ने एज ए कैटलिस्ट डाला है। फ्राइडल ट्रैप ने हम लोगों ने अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज किया है। सल्फोनेशन में रिएक्शन का रेट बढ़ाने के लिए हमने H2SO4 का यूज किया है। नाइट्रेशन में हम लोगों ने H2SO4 डाला है, बराबर है, नाइट्रिक एसिड के साथ। और हेलोजनेशन में भी हम लोगों ने एज ए मेटल लेविस एसिड अनहाइड्रस ApCl3 डाल दिया है। तो इससे क्या होता है कि रिएक्शन का रेट थोड़ा बढ़ता है। जो रिएक्शन पहले मैंने आपको बोला था कि ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द क्लोराइड, क्योंकि एलोअरिन में दो इफेक्ट है, एक माइनस आई इफेक्ट और दूसरा प्लस आर इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द प्लस आर इफेक्ट, इसीलिए हम लोगों ने हर जगह पे अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड हो या FeCl3 हो या सल्फोनेशन में दो दो H2SO4 हो या नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हो, ही डाला है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया ऐसा मैं समझता हूँ। हमने आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन ऑफ हेलोअरिन्स देखा, जिसमें हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जनरेट होती है। आपको मालूम ही है कि अरिल हैलाइड जो होता है वो लो, उसकी रिएक्टिविटी लो होती है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट एंड sp2 hybridized state, but reactivity in but you can increase the reactivity with increasing the greater number of electron withdrawing group at ortho and para position. Then we have seen electrophilic substitution in aryl halide. We have seen halogenation in electrophilic substitution in aryl halide. Then nitration, sulfonation, Friedel-Crafts reaction that we have seen in alkylation and acylation. तो उम्मीद ये करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से ये वीडियो 2 बार देखो, 3 बार देखो। आपको ये टॉपिक जब तक समझ में नहीं आता तब तक वीडियो देखते रहो। आई होप you are enjoying the online session, and I hope you understand well by maintaining social distance. Thank you for being with us. Bye bye.